Good morning children. From lesson 24th we have already learned about the health care. Now we are going to learn about the education facilities to the citizen of India. So education is our next topic. Education for every Indian citizen is on the priority of the government. Article 21A of the Indian Constitution has made a provision for free and compulsory education for all the children up to the age of 14 years. As we all know that free and compulsory education है 14 years तक का सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एजुकेशन for every Indian citizen. It is the main aim of the government, and the government is giving importance to the education to the children, as education plays an important role in improving the socio-economic condition of the people. Through the education only people can get the improvement and they can make progress. So for that government has made provision and schemes so that everybody is able to get education. Government have made different schemes and different plans for giving education to the children. State government have opened the primary schools, secondary schools, senior secondary school, colleges and institution of higher learning at different levels. So many schools, colleges and higher education learning centers are opened by the state government. Not only in the city, in the village also we can see many schools and colleges. Okay. So Sarva Shiksha Abhiyan, it is an Indian government program aimed at the universalization of elementary education in a time-bound manner. So Sarva Shiksha Abhiyan, ये आपने बहुत बार सुना होगा, Sarva Shiksha Abhiyan. It is an government program, Indian government program. The aim of this Sarva Shiksha Abhiyan is universalization of elementary education in a time-based manner, time-bound manner. Within this time में सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, वही इसका एम. And making for education compulsory for the children between 6 and 14 years, वो उसका एम है. And it started since 2000 and 2001 to achieve this target. उसकी टारगेट है ये सभी को एजुकेशन देना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. सो वो जो उसका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट में क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स आर ओपनिंग स्कूल्स इन द प्लेसेस विच डू नॉट हैव स्कूल्स. Also existing schools are being strengthened through additional classrooms, toilets and teacher training programs. So ये जो टारगेट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कूल्स ओपन किया, उसके साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, जहाँ पे स्कूल्स है उसमें एडिशनल क्लासरूम बनाया, टॉयलेट एंड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब गवर्नमेंट अरेंज किया. एंड नॉट ओनली दैट, life skills, girls education, computer education and education for the children with the special needs are other component of the SSA means Sarva Shiksha Abhiyan. मीन्स गर्ल्स को एजुकेशन देना, कंप्यूटर एजुकेशन, है सब इसकी पार्ट है सर्व शिक्षा अभियान का. सो ये सर्व शिक्षा अभियान की एक फीचर है कि प्रोग्राम विथ ए क्लियर टाइम फ्रेम फॉर द यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. एक टाइम बेस्ड है ये, इतना टाइम की अंदर उसने एक टारगेट कंप्लीट करते हैं. एंड उसमें इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड यूजफुल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप. एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को 6 to 14 ईयर्स की बिटवीन का सभी बच्चों को प्रोवाइड करना, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्व शिक्षा Abhiyan. And it then to realize the importance of early childhood care and education and looks at the 0 to 14 age as a continuum. मीन्स ये सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू सभी को एजुकेशन देना, बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना एंड बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़
देना है. Value based learning that allow children an opportunity to work for each other's well-being. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के थ्रू बच्चों में एक मोरालिटी, वैल्यू बेस्ड लर्निंग दे के बच्चों को हेल्प करना एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना, ये सर्व शिक्षा अभियान. देन नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, RTE. राइट टू एजुकेशन, it is the right for the children. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 came into force on 1st April 2010. So ये जो राइट टू एजुकेशन इसका 2010 में 1 अप्रैल 2010 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स का ये जो एक्ट केम इनटू फोर्स. And by this act every child in the age group of 6 to 14 will be provided free elementary education in a suitable classroom in his neighborhood. जहाँ पर एक बच्चे रहते उसी का ही आजू बाजू में 6 to 14 ईयर्स का बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देना है, वो भी फ्री एजुकेशन देना है. एंड गवर्नमेंट इसका जो भी कॉस्ट आएगा, द गवर्नमेंट विल बियर ऑल कॉस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड सो दैट एवरी चाइल्ड कुड कंप्लीट 8 years ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम 6 to 14. ये 8 years का एजुकेशन पूरे बच्चों को फ्री है. एंड दिस एक्सपेंडिचर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इज शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जितना भी खर्चा आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर करके, जैसा 65% है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 35% स्टेट गवर्नमेंट उसकी खर्चा देते हैं. एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करते हैं. एंड राइट टू एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट नाउ. अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट गवर्नमेंट स्कूल में 100% फ्री एजुकेशन है, 100% सीट फ्री एजुकेशन के लिए. एंड द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उसमें 95% फ्री एजुकेशन है. एंड लाइक प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स जहाँ पे गवर्नमेंट फाइनेंशियली कुछ नहीं देते, वैसे स्कूल के 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है. पूरे बच्चों में मीन्स 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है. जैसा अपनी स्कूल है प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, हमारे स्कूल में 25% RT का बच्चे पढ़ते हैं. ये इसकी रूल. सो राइट टू दिस इज नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट. ये दिस रूल राइट टू एजुकेशन एक्ट वेर amended in February 2017 to include subject-wise learning outcome till class 8th standard तक है ये जो फ्री एंड फ्री एजुकेशन बच्चों को देते हैं. सो देयर बाई एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन. उसका एक सभी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन इट इज़ द फंडामेंटल राइट है. सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलते हैं थ्रू दिस एक्ट. ओके, थैंक यू.